So, very good morning, everyone. After 2 days, today, tomorrow, 23rd and 24th, we have periodic test 8 of all the subjects, right? So, for that, we are revising the things of all the subject today and tomorrow. 2 days, we will revise for the test. We have in mathematics the chapters which we have, the test form is, we know just recently the chapters which we have learned about the time, then measurement of weight, capacity. So based on these topics, the test will be there. So let us see in this test which type of question will be asked. Okay. So I will ask some question, I will discuss some question. It is not necessary that the same question will come, but the value may be changed. The types of questions will be like this. Okay. So it is not necessary exactly the same question will be there. So question may be changed, value may be changed, and the names and all may be also changed. So just you have to keep in mind the process, the steps which you will follow, which this is how you have to answer like that. Okay. So we are coming, or we are starting the revision with the chapter conversion. Okay. So suppose I am asking one question. Today is 21st of December. So write down date everyone first. Today's CW is revision for periodic test 8. The chapters are based on times and conversions of measurement of length, weight or capacity. Okay. So suppose we are later discuss, I mean combiningly, it is not necessary that chapter wise we will go. So suppose we are discussing combiningly. First question, let us ask, convert 2 days, 5 months into days. Okay, so first question is convert 2 days and 5 months, 2 years and 5 months into days. So convert 2 years and 5 months into days. इसको डेज में कन्वर्ट करना है 2 साल और 5 महीना को. सपोज ऑप्शन आर गिवन. ऑप्शन ए 8 days, ऑप्शन बी सपोज 80 days, ऑप्शन सी 808 days, and option D is 880 days. So quickly tell me everyone, what will be the answer of this 2 year 5 month को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितने आंसर आएगा, जल्दी से बताएं. यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज 2 ईयर. सो 2 ईयर हम लोग को पता है 1 ईयर मीन्स 365 डेज, राइट. एक साल में होता है 365 दिन. अब उसके बाद हमें मंथ को भी कन्वर्ट करना है 5 into 30. तो आई एम गेटिंग आंसर एज ए डी. सो लेट अस वेरीफाई दिस. हम लोग इसको सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं. डी ज्यादा ऑप्शंस आ रहा है. तो 2 साल मीन्स 365 मल्टीप्लाई 2. 365 दिन में एक साल होता है. तो 5 to 10, 0, 1 carry, 6 to 12, 13, 3, 1 carry, 3 to 6, 7, 7, 30.
ओके 365 दिन का 2 साल का मतलब होता है 730 डेज। ओके 2 साल का मतलब होता है 730 दिन। अब हमारा 5 मंथ मीन्स 30 मल्टीप्लाई 5, सो 5 3 आर 15, सो 150 डेज। सो 3 महीना में होता है, सॉरी 5 महीना में होता है 150 दिन। तो अभी हम लोग को ये जो दो है ये दोनों को ऐड करना है। सो 730 प्लस 150, सो इट विल बी 0, 5 प्लस 3 इज 8, 7 प्लस 1 इज 8, 880। वेरी गुड। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है 880 डेज इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। अभी हम लोग मूव करते हैं इस तरह से। यहाँ पे 5 डेज के सॉरी 2 डेज के जगह पे 3 डेज, सॉरी 2 इयर्स के जगह पे 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स भी रह सकता है। 5 मंथ के जगह पे 2 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, जो भी है दैट कैन बी देयर, बट द प्रोसेस विल बी जस्ट मल्टीप्लाई विथ 365 द ईयर and multiply with 30 the month and then add those two. Okay, the process you need to keep in mind. Now coming to the next type of question, suppose question number 2 is asking change or convert, the same thing, change 5 liters (390 milliliters) into मिलीलीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 लीटर 390 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। सपोज द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 539 ml, ऑप्शन बी 53900 ml, एक है सपोज 0, आफ्टर देन सी 53900 ml and option D 53900 ml. So here 4 options we have. हम लोग को कन्वर्ट करना है 5 लीटर 390 मिलीलीटर में। सो जल्दी से बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 लीटर 390 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 5 लीटर मीन्स 5000 मिलीलीटर प्लस 390 मिलीलीटर, सो 5390 मिलीलीटर एग्जैक्टली। तेजस्वी, ऑप्शन बी 5390 is the correct answer, exactly. So option B 5 liter means 5000 milliliter and हम लोग के पास 390 मिलीलीटर है। तो अभी ये दोनों को ऐड कर देंगे 0935, so 5390 मिलीलीटर will be the correct answer. Okay? तो इस तरह का अगर लीटर और मिलीलीटर में रहता है तो आप बहुत ही इजीली मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और जस्ट इट कैन बी द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम अपोजिट साइड आल्सो। क्वेश्चन अपोजिट साइड से मतलब अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो लीटर एंड मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। इसी बीच में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 3, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एन आवर हैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है एन आवर हैंड, घंटे का जो कांटा है, टेक्स, आवर हैंड टेक्स कितना टाइम लगता है, डैश आवर्स और आवर्स टू मूव करने में फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो घंटे का कांटा है, एन आवर हैंड टेक्स डैश आवर या आवर्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द अनदर नंबर, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर में, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए कितना घंटे का टाइम लगता है। जैसे सपोज ऑप्शन आर 1, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 24 और ऑप्शन डी इज 60। सो यहां पे जल्दी बताएं कितने घंटे लगते हैं आवर हैंड को, घंटे का कांटा को एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए। आई एम गेटिंग आंसर एज ए 1 आवर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। जिसका भी आंसर आ रहा है 1 आवर्स, बहुत ही बढ़िया। अगर हम लोग क्लॉक का बात करें, यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आवर हैंड ही पूछे। अगर आवर्स हैंड पूछता है तो इट विल बी 1 आवर, एक आवर हैंड अगर पूछता है। बट इफ इट इज आस्किंग मिनट हैंड देन इट विल बी 5 मिनट। वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए 5 मिनट टाइम लगता है, ठीक है, बिकॉज दीज आर द स्मॉल डिविजन्स वी हैव इन केस ऑफ मिनट। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये बात है कि अगर मिनट हैंड पूछा जाता है और सेकेंड हैंड पूछा जाता है तो इट विल बी 5। अगर आवर्स हैंड पूछा जाता है इट विल बी टेक 1 आवर। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का जो है, सपोज दैट इज आस्किंग ए जार कंटेंट्स, एक जार है जिसमें कुछ चीजें हैं, कंटेंट्स 1200 मीन्स 1200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। मतलब एक जार में दूध रखा हुआ है जिसका क्वांटिटी जो है वो 1200 मिलीलीटर दूध है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मेनी लीटर्स एंड मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज इन द जार। सो इसका मतलब इसको आपको मिलीलीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, मतलब कितना लीटर और कितना मिलीलीटर मिल्क जो है, मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज इन द जार। तो ये जो जार है इसमें कितना लीटर और कितना मिलीलीटर मिल्क है वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर 1200 मिलीलीटर है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है लीटर और मिलीलीटर में। सपोज द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 1 लीटर्स 2 मिलीलीटर, ऑप्शन बी इज 1 लीटर्स, यहां पे लीटर होगा लीटर के केस में, 1 लीटर 20 मिलीलीटर, ऑप्शन सी इज 1 लीटर 200 मिलीलीटर, ऑप्शन डी इज 12 लीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताएं। एक जार है जिसमें 1200 मिलीलीटर मिल्क है, इसका मतलब कितना लीटर और कितना मिलीलीटर है एग्जैक्टली जिसका भी आंसर 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में देखिए अभी मिनट हैंड पूछा है, जैसे आवर हैंड पूछा था वैसे ही अभी पूछ रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मिनट हैंड टेक्स, मिनट हैंड टाइम लेते हैं डैश मिनट्स, कितने मिनट टाइम लेते हैं
टू कंप्लीट वन राउंड। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दें। इसमें पूछ रहा है कि जो मिनट हैंड है वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, ठीक है। इट इज नॉट आस्किंग कि एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में कितना टाइम लगता है, ये पूछ रहा है एक नंबर से फिर से उस नंबर पे आने के लिए राउंड मार के टोटल कितना टाइम लगता है। तो ये ध्यान में रखने वाला चीज है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को क्लॉक दिखाऊं तो इस तरह से पूछा जा रहा है, ये मिनट हैंड है, मान लीजिए यहाँ पे मिनट हैंड है, तो यहां से एक बार राउंड करके फिर से ये यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सपोज द ऑप्शंस आर, मान लेते हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा वो है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी इज 100। So quickly tell me everyone how much time it will take. Exactly 60 minute is absolutely correct answer. तो 60 मिनट का टाइम जो है वो लगता है क्लॉक को एक राउंड मूव करने के लिए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो इसी तरह से मिनट हैंड में अगर इस तरह से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपका मिनट हैंड 3 में है, अगेन 3 में आने में कितना टाइम लगेगा, देन ऑल्सो द आंसर विल बी सेम 60 मिनट, ओके। तो 3 में है, फिर से 3 में आने के लिए भी सेम टाइम लगेगा 60 मिनट, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अभी क्वेश्चन ये रह सकता है रिलेटेड टू द रीडिंग ऑफ टाइम। अब रीडिंग ऑफ टाइम में किसी तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, इट मे बी लाइक इस तरह से हो सकता है, पूछे कि टेल व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक। सो इसमें पूछेगा टेल व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक, इसमें ऑप्शंस दिया रहेगा 3:15, 3 o'clock। सपोज हम यहाँ पे क्लॉक दिखा रहे हैं और आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सपोज 3 o'clock, देन ऑप्शन बी इज 3:15, ऑप्शन सी इज 3:45 एंड ऑप्शन डी इज 2:15, ओके। तो सपोज इस तरह से आपका टाइम दिखाया गया है क्लॉक में और आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉक। द टाइमिंग इज शोन इन दिस क्लॉक, यू हैव टू टेल व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस क्लॉक, ओके। देख लिए सभी, जल्दी से बताएं विच विल बी द करेक्ट आंसर। A, exactly A, 3 o'clock is the correct answer, definitely। अभी मान लेते हैं इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, now it is showing like this and the options we are changing is 4 o'clock, then 4:15, 4:45 and 4:15। So here or 4:15 suppose। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको अभी बताना है टाइम जो है वो क्या है। टिल नाउ व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक। सो द ऑप्शंस आर 4 o'clock, ऑप्शन बी इज 4:15, ऑप्शन सी इज 4:45, ऑप्शन डी इज 4:15। सो यहां पे इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं व्हाट विल बी द टाइम। B, exactly 4:15 is the correct answer in that case, very good। तो इस तरह से टाइमिंग जो है क्लॉक दिया हुआ रह सकता है, you have to tell the time according to the given clock, okay। So this you all understood। Now let us move to the next type of question। Suppose next is question number 7 is asking when it is 1/4 an hour,
जब क्वार्टर पास्ट कोई एक हाउस से क्वार्टर पास्ट हो जाता है, when it is क्वार्टर पास्ट, जब क्वार्टर पास्ट कोई आवर्स का होता है, एन आवर should the most or the minute hand जो होता है has covered, मतलब ये पूछ रहा है कि जब भी कोई आवर्स का क्वार्टर पास्ट होता है तो ये मिनट हैंड जो है ये कितना मूव कर चुका होता है। When it is quarter past an hour, जब कोई टाइम का क्वार्टर पास्ट होता है, the minute hand has covered, तो मिनट हैंड जो है वो कितना मिनट कवर कर चुका होता है। ठीक है, तो यहां पे सपोज ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी इज 60। तो इस तरह से ऑप्शंस है, तो कितना मिनट ये जो होगा पार कर चुका होगा। ठीक है, व्हेन इट इज क्वार्टर पास्ट एन आवर, तो आप क्वार्टर पास्ट 4 ले सकते हो, क्वार्टर पास्ट 6 भी ले सकते हो, वॉट एवर द टाइम यू विल टेक, इट डजंट मैटर, बट क्वार्टर पास्ट ऑफ एन आवर में जो आवर हैंड पास्ट ऑफ एन आवर, द मिनट हैंड, ये मिनट हैंड जो होता है ये कितना कवर कर चुका होता है, दिस इज द क्वेश्चन। सो टेल मी क्विकली, इज इट 3, 5, 15 और 60? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर से जल्दी से बताएं। आई एम गेटिंग आंसर एज ए सी 15, एग्जैक्टली C15 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये 15 मिनट कवर कर चुका होता है, क्योंकि ये एक हाउस में जब मिनट हैंड मूव करता है दैट मींस 5 मिनट, तो 5, 10, 15। ओके, उसी तरह से हाफ पास्ट में पूछा जा सकता है, देन इट विल बी 30 मिनट। उसी तरह से क्वार्टर 2 में पूछा जा सकता है, तो इट विल बी 45 मिनट। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हेन इट इज क्वार्टर टू एन आवर, देन मिनट हैंड कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस, तो इट विल बी 45 मिनट। अगर पूछा जाता है व्हेन इट इज हाफ पास्ट एन आवर, हाउ मच मिनट द मिनट हैंड कवर्ड, देन इट विल बी 30 मिनट। ओके, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस वाज द 7th क्वेश्चन। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हम लोग आज कोशिश करते हैं एटलीस्ट 10 मिनिमम क्वेश्चन रिवाइज करने का। अगेन आई एम टेलिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम क्वेश्चन आएगा, इट मे बी क्वेश्चन में भी चेंज, जस्ट वी आर रिवाइजिंग फॉर basic thing which we have learned so that you can revise yourself. Okay, then coming to question number 8, how many 200 ml, how many 200 ml, कितना 200 ml मिला के measures of water will fill 1 लीटर जग। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि अगर ये एक्टिविटी हमने किया था, आपको अगर याद है कि अगर 1 लीटर का एक जग है, 1 लीटर का एक जग है मान लीजिए, और हम 200 ml करके जो है इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, 200 ml करके वाटर फिल कर रहे हैं, तो कितना जो है वाटर लगेगा, कितना ग्लास ऑफ वाटर लगेगा टू फिल दिस जग। Okay, so this is the question. So options are, suppose option A is asking 2, option B is 3, option C is 4 and option D is 5. So quickly tell me how many glass of water will fill. अगर एक ग्लास 200 ml का है तो 1 लीटर का जो ग्लास है वो कितना में फिल होगा? 5 is not correct answer. Okay, yes. Exactly, 5 is the correct answer because 5 2 are 1000, right? 5 2 are 10, so 1000 ml में 1 लीटर होता है। अगर यहाँ पे 250 रहता है, that will be something else,
ओके तो उस हिसाब से आप लोग को मेजरमेंट याद रखना है। यहाँ पे 500 भी रह सकता है, अगर 500 रहेगा देन इट विल बी इनटू ग्लास ऑफ वाटर इट विल बी फिल। अगर 250 रहता है तो अलग होगा, तो उस हिसाब से देखना है। यहाँ पे जैसे वैल्यू है उसके हिसाब से इट विल बी 5। ओके सो इन 5 ग्लास ऑफ वाटर इट विल फिल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Coming to the next question, but we don't have so much time today. Rest of all questions we will discuss in our next class. So you all just revise whatever we have discussed today or whatever we have learned. Okay, in homework I will give assignment. Okay, so that you will check it later on. Whatever the assignment you will get and you revise for the test, that will be the base homework of today. Okay, after then I will give the assignment in your assignment module, then you will check. Thank you everyone, have a good time, take care and bye bye.